دعوت اسلامی تیرے لیے، دعوت اسلامی تیرے لیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کی ہے بات، پروگرام ہے ملاقات، اور ایک معزز شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ۔ کون ہے وہ؟ کچھ ہی دیر میں جانتے ہیں۔ لیٹس لسن دا تھیم آف ٹوڈیز پروگرام۔ یہ کیا پروگرام ہے، آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ دس از ایکچولی سویٹ چائلڈہڈ میموریز، دا آٹوبایوگرافی۔ یہ کچھ اچھی اور حسین ماضی کی یادیں ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیات مہمان ہوں گی ان کی زندگی کے نشیب و فراز ایسے ہیں کہ آپ جب سنیں گے آپ کے لیے یہ سب بہت باعث ترغیب ہوگا، اور آپ کی زندگی کو بھی مقصد ملے گا۔ تو رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک، اور یہ عید کی جو دلچسپ نشریات مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آیا، اس سے جڑے رہیے گا۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ انہیں ہم اپنے منچ پر، اپنے سٹیج پر، اس کرسی پر دعوت دیں، آئیے سنتے ہیں کچھ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہیں بتاتے مرشد، یہ ہیں دکھاتے مرشد، اور یہ ہیں ملاتے مرشد، میں ان کا پیر بھائی۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کے کبھی نہ گرنے والے پہاڑ ہیں۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ یہ عشق رسول کا پیکر ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر ان کے جیسا بنوں گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ حج پر روانہ ہوں۔ فیصل آباد میں دعوت اسلامی کی پہچان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ملتے ہیں اپنی معزز شخصیت سے، اور یہ ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب۔ دعوت اسلام، دعوت اسلامی تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، عید مبارک۔ خیر مبارک حضور۔ بسم اللہ۔ جی، ہمارے قبلہ حاجی شاہد صاحب اس وقت سیٹ پہ ہمارے ساتھ کرم فرما ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے۔ کیسے حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل آج حال۔ کا جو ہمارا پروگرام ہے ملاقات، اس کی تھیم یہ ہے کہ ہم جانیں گے آپ کے بارے میں کس طریقے سے زندگی کے نشیب و فراز گزرے، کہاں سے زندگی کا آغاز ہوا، اور آپ کو بتائے بغیر ہم نے آپ کے بہت سے جاننے والوں کے تاثرات بھی اکٹھے کیے ہیں۔ بہت جگہوں پر ہم گئے جہاں پر آپ کے ماضی کی یادیں ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ماضی، حال اور مستقبل کے زمانوں میں یہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ماضی میں ہم نے دیکھی اور مسکرا پڑے تھے، آج وہی چیزوں کو یاد کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ماضی کی بہت سی ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر ہم روئے تھے، آج انہیں یاد کر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں قبلہ حاجی شاہد صاحب کے ساتھ ہوں گی۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، میری ذاتی زندگی میں قبلہ حاجی شاہد صاحب کا بہت بڑا ایک رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو میں حاصل کی برکتیں، مدنی ماحول میں آیا جس کو عام عرف میں کہتے ہیں، اس میں قبلہ حاجی شاہد صاحب کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ حاجی صاحب کو یاد ہوگا جب آپ اوائل میں، جب میں مدنی ماحول میں آیا، آپ کے ساتھ سفر کی کتنی سعادتیں حاصل ہوتی تھیں، اور ایک بہت ہی یادگار سفر یاد ہوگا، میں تھا، حاجی شاہد صاحب تھے، اور نگران شورا حاجی عمران صاحب تھے، اور آپ امیر قافلہ تھے۔ میں امیر قافلہ تھا۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ گوجرا میں بیان ہوا تھا، اور ہم نارووال کے سائٹ پر بھی گئے تھے، اینڈ دیٹ واز the most remarkable journey of my life۔ آئیے حاجی صاحب کی طرف چلتے ہیں جی، اور کچھ پوچھتے ہیں حاجی صاحب کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ حاجی صاحب، آپ کی زندگی کو جو جانتا ہے وہ ایک خاص شہر کے بارے میں اس کو فوراً ریکلک ہوتا ہے، اور آپ نے بھی اکثر ذکر کیا، تو سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ سندھ کا شہر نواب شاہ، اس شہر کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ وہاں پر پیدا بھی ہوا اور بچپنا بھی گزرا، میٹرک وہیں کیا، کالج میں بھی وہیں پڑھے، دینی ماحول میں بھی وہیں آئے، اور سب سے بڑی بات امیر اہل سنت سے ملاقات بھی نواب شاہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی ملاقات جو ہوئی، اور دعوت اسلامی بھی نواب شاہ میں ملی۔ زندگی کے بہت سے چیپٹرز ایسے ہیں جو کھلے ہی نواب شاہ کے اندر۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔
مدری چینل کے ناظرین، نواب شاہ آئی صاحب کی نیٹو جگہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. آئیے جس جگہ آئی صاحب کی پیدائش ہوئی وہ جگہ کیا ہے، کیسے اس کا محل وقوع ہے، کیا اس کی ڈیزائننگ آرکیٹیکٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے. دعوت اسلامی تیرے لیے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے. دعوت اسلامی. آئی صاحب، ان گلیوں کو، ان گھروں کو دیکھ کے آپ کے دل میں آج کیا خیال، کیا تصور اور کیا سوچ آئی، کچھ شیئر کریں گے آپ؟ ہمارا محلہ ہے اور وہ گھر جس کے اندر ہم نے بچپنا گزارا وہ بھی دکھایا گیا. یہ محلہ اسر پورہ اور اب اس کو لیاقت آباد کہتے ہیں. یہ وہاں پر ہمارا بچپنا گزرا ہے. اللہ راضی ہو. بھائی صاحب، کوئی ایسی بات نواب شاہ میں بچپنے کے حوالے سے جو خاص طور پہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو یاد ہو، کہ جو بھی کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے زندگی میں، کبھی کبھار کوئی رستہ ایسا ہوتا ہے انسان اس رستے سے گزرے تو خاص یاد آ جاتی ہے. تو جس طرح آج آپ نے یہ بڑے عرصے بعد ہو سکتا ہے دیکھا ہوا جگہ، تو کوئی ایک چیز جو آپ کو یاد آئی ہو؟ کئی باتیں ظاہر یاد تو آتی ہیں. وہاں والد صاحب ہمارے، ہم چھوٹے تھے، نماز فجر کے لیے لے کے جاتے تھے مسجد میں. ملنگ مسجد ہماری گلی کے ایک گلی کراس کر کے قریب ہی تھی، سمجھیں کہ 2-3 منٹ میں آدمی پہنچ جائے. تو اسی گلی میں ہمارے وہ دوست بھی رہتے تھے بچپن کے، ان کو بھی میں فجر میں اٹھا کر ساتھ لے کر جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ پاک راضی ہو جائے اور جو اب سفر باقی ہے طویل ترین آخرت کا سفر، اللہ وہ آسان فرما دے. وہ تو کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. اب میرے جیسے جو اب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو نہ جوانی پلٹ کر آنی ہے نہ بچپن نے آنا ہے. اب تو آگے سفر ہے، قبر ہے اور آخرت ہے، اور اللہ راضی ہوا تو انشاءاللہ جنت ہے. قبلہ صاحب نے جو بچپن کی بات شیئر کی، اس ملنگ مسجد میں آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر جاتے. ملنگ مسجد کے ساتھ حاجی صاحب کی کچھ یادیں یقیناً وابستہ ہوں گی. حاجی صاحب کچھ آپ ارشاد فرمائیے، پھر مدری چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں ملنگ مسجد کیا ہے اور کہاں پر ہے. دیکھیے، یہ مسجد جو ہے ایک ملنگ صاحب نے بنائی تھی. یعنی وہ گلی میں گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا کرتے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے. اور میں مدری مشوروں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ملنگ چاہیے مسجد بن جائے. سبحان اللہ، واہ زبردست. وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ کر لیتا ہے. اچھا، اسی مسجد میں بچپن میں ہم قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے، نمازیں بھی والد صاحب لے جاتے تھے. اور یہاں حافظ مصری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا. محدث اعظم پاکستان کے مرید و شاگرد تھے. اللہ کی شان دیکھیے کہ بچپن سے ہی محدث اعظم پاکستان کے جو تربیت یافتہ تھے ان کی ہم شاگردی میں آئے، اور پھر محدث اعظم پاکستان نے ہمیں فیصل آباد بنا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب نے ابھی جو بات ارشاد فرمائی، دیٹس ویری انسپائرنگ. یہاں پر ایک چیز میں مدری چینل کے ناظرین آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو پروگرام ملاقات ہے، اس میں جن جن سے ہم نے ملاقات کی، ایک خاص چیز کو نوٹ کیا کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک عدد مسجد ایسی ہے جس پہ ان کی پرسنل انویسٹمنٹ ہے، یعنی ان کا اپنا ذاتی تعلق ہے. حاجی امین صاحب کے پاس گئے تو مسجد اقصیٰ تھی. حاجی اظہر صاحب نے بھی 2 مساجد کے بارے میں بتایا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ملک مسجد کے بارے میں کچھ فوٹیجز دیکھ لیتے ہیں. دعوت اسلام، دعوت اسلامی تیرے لیے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے. دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے. دعوت اسلامی. حاجی صاحب، ملک مسجد کے ساتھ کچھ اور مساجد اور مدارس بھی دکھائے گئے، آپ ہی بتا دیں ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار رہا. ملنگ مسجد کی اور یادیں بھی آ گئیں. ہم نے پہلا اعتکاف ملنگ مسجد میں زندگی کا کیا تھا. سبحان اللہ. اور کراچی سے ایک شاہ صاحب آئے تھے اور 8-10 ہم معتکف تھے. پھر ان کی ترغیب پر، ذہن سازی پر
कराची हाजिर होकर अमीर अहले सुन्नत के बैत का शरफ़ हासिल हुआ। ये गालिबन 83-84 की बात होगी। और मलंग मस्जिद में मुझे कई साल तक मदरसतुल मदीना बालिगन पढ़ाने का शरफ़ हासिल होता रहा। मलंग मस्जिद की यादें भी, ज़ियाउल मसाजिद भी दिखाई गई, ये भी सरपुरे में नवाबशाह में है। यहाँ बचपन में नाज़रा कुरान पाक पढ़ा था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। आज गालिबन इस मस्जिद में भी दावत इस्लामी की खिदमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नहीं थी, अब है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये भाई साहब एक चीज़ ज़ाहिर होती है वाकई, जिस तरह आपने ये फरमाया कि जिससे इंसान ने कुरान मजीद पढ़ा होता है, एक तो वो हस्ती जो भी हैं, मतलब के कारी साहब हैं या जो भी हैं, और जिस जगह पढ़ा होता है इंसान को वो चीज़ भूलती नहीं हुजूर, इसकी क्या वजह है? देखिए, बचपन की बातें जो हैं वो पत्थर पर लकीर कहा गया ना, बुढ़ापे की रेत पर लकीर है, तो बचपन की बातें याद रहती। और यहाँ देखें कि एक बात मैं नाजरीन को अर्ज़ करूँगा, अपने बच्चों और बच्चियों के ट्यूटर और उस्ताद कैसे होने चाहिए ये गौर करें। वो मजहबी होगा तो आपके बच्चे मजहबी हो जाएंगे, उसके अच्छे अखलाक होंगे तो बच्चे के अच्छे अखलाक हो जाएंगे। वो अगर आशिक रसूल है तो आपके बच्चे और बच्चियाँ आशिक रसूल बन जाएंगे। और अगर उसका अमल ठीक नहीं है तो आपके बच्चों में वो बात बहुत जल्द सरायत कर जाएगी। और वो जो हाफिज़ मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जिनसे हमने बचपन में कुरान पढ़ा, दूसरी जगह पढ़ा इनके पास यस्सरनल कुरान, मदनी कायदा तो मदनी माहौल के बाद पढ़ा। ये थे तलागंग के थे, ये भी ये पंजाब के तलागंग चकवाल के करीब जी। और ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत और इनकी ग़ुलामी, इनकी शागिर्दी थी। तो इसलिए बचपन में जो जिनसे भी हम पढ़ते हैं वो चीज़ें याद रहती हैं, बचपन के वो टीचर भी याद हैं। मजीद के नाजरीन, बचपन की यादें हैं और बचपन में स्कूल की कितनी अहमियत है हम सब जानते हैं। हाई साहब के स्कूल में पढ़े और हाई साहब के स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या थी, सुनते बाद में है, आइए पहले कुछ देख लेते हैं। दावत इस्लामी तेरे करते रहे काम हम दिल उजा से, करते रहे काम हम दिल उजा से, राजी रब को करे दावत इस्लामी तेरे लिए। स्कूल आई सब, यहाँ पर आपके स्कूल के अंदर तो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है, माशाल्लाह प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। और साथ स्कूल की भी आमतौर पर इसे समझा जाता है कि ऐसे शहरों के अंदर स्कूल भी उस लेवल का होगा, लेकिन स्कूल तो बहुत ज़बरदस्त है। इस चीज़ को देख के क्या याद आया हुजूर आपको? बहुत अरसा हो चुका है स्कूल गुजरा हुआ, दोस्त अहबाब क्या कुछ करते थे? अल्लाह राज़ी हो, इस स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया था। तो माशाअल्लाह आज निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना है और दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोमिनेंट फिगर्स में से हैं। इनके सदक़े कितने लोगों ने इमामा पहना, क्या कुछ हुआ। मेरी मिसाल आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपसे कर चुका हूँ कि दावत इस्लामी के अंदर मेरी एंट्री इसमें इस्तकामत में क़िबला हाजी साहब का बहुत बड़ा एक रोल है। जी हाजी साहब के स्कूल के एक टीचर के कॉमेंट हमारे पास हैं जी, देखिए वो टीचर साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं आज बहुत ही प्यारे शागिर्द के बारे में अपना इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ, जो कि माशाअल्लाह हाजी शाहिद के नाम से जाने जाते हैं। एक ज़माना था, कभी हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में रहाई पढ़ी थे। स्कूल के ज़माने में क्लास में मैं जाता था तो सबसे पहले अदब के साथ खड़े हो जाते थे और पूरी क्लास को खड़ा करते थे। दीन के कामों में अल्लाह ताला ने उनको पत्नी शुरू से जो है उनको रास्ते पर डाल दिया। मैट्रिक करने के बाद वो कॉलेज में पढ़ते रहे और दीनी तालीम हासिल करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आया कि आप माशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में मनसिक हो गए। इत्तेफाक की बात है कि मैं फैसलाबाद गया हुआ था, मैं कहा मैं शाहिद भाई से मिलूँगा। जब मैं उनके दाखिल हुआ तो दूर से देख के ताज़ीमन खड़े हो गए। जितने जो अहबाब बैठे उनके पास बैठे थे सारे हैरान हो गए, सब खड़े हो गए और आगे बढ़कर आए, मुझे मुसाफ किया, बगल गिर हुए, बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। हाजी साहब को अल्लाह ताला उम्र दराज़ फरमाए, सजरे हाथ अता फरमाए और दीन के कामों में माशाल्लाह वो अल्लाह के वली सिफत वो देखना तो उनको देख ले, उनमें अल्लाह के वली की सिफत आपको मिलेगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सेहत अता फरमाए, खुशियाँ दे, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज। मैं ये दुआ है। जी आई साहब, आपके उस्ताद साहब के तासुरात हैं, इनका नाम और इनका सब्जेक्ट भी आप इरशाद फरमा दें। सर ज़फ़र साहब,
अब सब्जेक्ट और वो याद नहीं है, लेकिन हमारे उस्ताद साहब हैं, टीचर हैं हमारे। इनके ये और इनके भाई वो भी टीचर थे, सर अख्तर। वो इनकी शफ़क़तें, मोहब्बतें और नेकी के कामों में हौसला अफजाई करते थे ये, माशाल्लाह। वही जो आपने इरशाद फरमाया, हर उस्ताद के साथ उसकी एक याद रह जाती है। मेरा नाम शमशाद अहमद सुल्तानी है। मुझे फ़ख्र है कि आज मुझे मोहम्मद शाहिद भाई रहने वाला पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से यहाँ पर बुलाया गया है। शाहिद भाई से हमारे पुराने तकरीबन 35 से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। माशाल्लाह उनको जो आज मुकाम है ये उन्हीं की मेहनत है, उनके घराने की भी बड़ी उन पर हाथ है। अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए। और आज ये जो दाढ़ी शरीफ रखी हुई है ये भी जो है शाहिद भाई की वजह से रखी हुई है। शाहिद भाई फैसलाबाद चले गए, काफ़ी अरसे के बाद मुझे उनका नंबर मिला। मैंने फ़ोन पे बात की शाहिद भाई से। शाहिद भाई ने जो है दुआ सलाम के बाद जो है एक ही सवाल रखा कि भाई आपने दाढ़ी रखी है? मैं नहीं, अभी नहीं, अभी रखूँगा लेकिन ठहर जाओ। शाहिद भाई कहने नहीं दाढ़ी रखनी है। मैं नहीं शाहिद भाई अभी बाद में रखेंगे। बोला नहीं अभी आपने रखनी है दाढ़ी। उसके बाद फिर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब दाढ़ी रखनी है। माशाल्लाह आज बड़ा रंग लगा हुआ है, माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त मिली मुझे दाढ़ी की बदौलत। और मैं समझता हूँ दाढ़ी ही की बदौलत बैतुल्लाह की शहादत भी नसीब हुई। मुझे फ़ख्र है कि हाजी शाहिद भाई जो है उसका मैं दोस्त हूँ। और पापा ने फरमाया कि ज़िंदा वली को अगर देखना है तो मोहम्मद शाहिद अत्तारी साहब को देखें। और मुझे ये फ़ख्र है कि हम शाहिद भाई को जो है ना देखते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कादरी अत्तारी। 86 में कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त कलाम पाक में पढ़ा हुआ नहीं था, तो कुछ दोस्त दावत इस्लामी से वाबस्ता थे तो मुझे तालीम बालगान की तरफ राग़िब किया। जब मैं मलक मस्जिद में तालीम बालगान के लिए आया तो शाहिद भाई से दुआ सलाम हुई। तो शाहिद भाई की निगरानी में मदरसा शुरू किया पढ़ने के लिए। तो डेली बेसिस में मैं आता तो आहिस्ता आहिस्ता दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए। शाहिद भाई के तवस्सुत से ही ककरी ग्राउंड इज्तिमात में गए। उस वक्त रबीउल अव्वल का महीना था, तकरीबन इज्तिमात के 8-10 दिन के बाद मैं रबीउल अव्वल की महफिल सजाई। शाहिद भाई जो थे इंतहाई दिल अजीज शख्सियत थे, हर कोई उनसे प्यार और मोहब्बत से मुलाकात करते थे और वो भी हर एक की दिलजोई करते थे। शाहिद भाई मेरे उस्ताद भी हैं और शाहिद भाई के साथ मैंने 1987 के बाद बाकायदा दावत इस्लामी की वर्किंग शुरू की। उस वक्त इज्तिमात के बारे में जो हम चौक इज्तिमात किया करते थे तो दावत इस्लामी के उस वक्त पम्फलेट बहुत कम आया करते, तो मैं हाथ से लिखकर मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ चौक पे वो पम्फलेट लगाया करता। तो शाहिद भाई जो उसको पम्फलेट को ओके करते थे, उसकी मतलब कि उर्दू वगैरह जो गलती वगैरह थी वो सेट करके उसके बाद हम लोग ये काम किया करते थे। शाहिद भाई जो थे कई मरतबा मेरे घर पे भी तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। शाहिद भाई के बारे में दिलचस्प वाक़या ये है कि जब मैं मदरसा पढ़ रहा था 89 की बात है या 90 की बात है कि मदरसे के दौरान शाहिद भाई ने कहा कि फारूक भाई कल से मैं मदरसा नहीं पढ़ाऊँगा, कल से आपको एहसान भाई मदरसा पढ़ाएंगे। और शाहिद भाई ने दूसरे दिन बेख्तियार किया और फैसलाबाद चले गए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक वसी कारोबार, सकंड पे इनके भाई का कारोबार, सांगर रोड पे इनके भाई का कारोबार, बगैर सोचे समझे मतलब मेरी नज़र में कि मुर्शिद का हुक्म हुआ, दूसरे दिन बैग उठाए और फैसलाबाद चले गए। तो दावत इस्लामी के लिए इस पूरे घराने की जो कुर्बानियाँ हैं शायद मेरी नज़र में शायद किसी और की ना हो। और बापा ने जो फरमाया कि अगर ज़िंदा वली देखना है तो शाहिद भाई को देख लें। पिछले दिनों शाहिद भाई से 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं। वैसे भी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती थी जब नवाब तशरीफ़ लाते थे, तो अभी भी बेतकल्लुफ़ाना हम लोग मुलाकात करते हैं। उसी अंदाज़ में शाहिद भाई पहले की तरह जैसे प्यार करते हैं उसी अंदाज़ में अभी भी जब मुलाकात होती है तो गुफ्तगू करते हैं। तो शाहिद भाई से मिलकर बेइंतहा खुशी होती है। और शाहिद भाई के जो प्रोग्राम मदनी चैनल पे जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले सब इंतज़ार करते हैं शाहिद भाई के प्रोग्राम का। और मदनी चैनल पे जो मदनी मुज़ाकरा जो होते हैं पूरा घर दावत इस्लामी से वाबस्ता है सिर्फ शाहिद भाई की वजह से। अगर मैं ना आता तो शायद मेरा घर भी दावत इस्लामी से वाबस्ता ना होता। तो आज मैं भी दावत इस्लामी से जो वाबस्ता हूँ शाहिद भाई की ही वजह से हूँ। अल्लाह ताला शाहिद भाई की इज़्ज़त में तौक़ीर में खैर और बरकत अता फरमाए। मुर्शिद का साया
تا دیر قائم و دائم رہے. میرا نام محمد انور اتاری ہے. میرا تعلق نوابشاہ سے. الحمدللہ آج حاجی شاہد کے بارے میں تاثرات دینے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. شاہد بھائی سے میرا جو تعلق تھا، جو مجھے یاد ہے، غالباً 1985 کے آس پاس میرا ان سے تعلق ہوا. اس قدر میں خوف خدا تھا. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جو مجھے یاد ہے. مدنی قافلہ نوابشاہ سے قریب ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا شہر، اس کا نام ہے کوٹ لالو. وہاں پر قافلہ گیا. جب واپسی رات کو ہو رہی تھی تو چند منٹ کے لیے وہاں پہ ٹرین رکتی ہے. تو ٹکٹ گھر جو بند تھا، اب نوابشاہ آنا بھی ضروری ہے اور ٹکٹ لینا بھی ضروری ہے. بہرکیف وہ ٹکٹ چند اسلام بھائیوں نے نہیں لیا اور وہ بغیر ٹکٹ بیٹھ کر نوابشاہ آ گئے. جب شاہد بھائی سے عرض کی گئی کہ شاہد بھائی وہ ٹکٹ گھر بند تھا اور ہمیں ٹکٹ نہیں لی، تو آپ نے فرمایا ایسا کریں کہ نوابشاہ سے کوٹ لالو کا ٹکٹ لیں اور یہ ٹکٹ لے کے پھاڑ دیں تاکہ جو پیسے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہو جائے. سب بڑے حیران ہوئے کہ اس زمانے میں یہ سوچ کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع ہو جائے. تو یہ الحمدللہ ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، اور میں نے ان کو جب بھی دیکھا انہیں متقی و پرہیزگار پایا. یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ آپ نوابشاہ سے آپ کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ تاثرات جو ہمیں یاد دے سکیں. بہت سے بے شمار واقعات ہیں جو ظاہر ہے کہ تمام کے تمام بیان نہیں کیے جا سکتے. الحمدللہ ہر اسلام بھائی کے ساتھ پورا کوئی واقعہ ہوگا آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، درگزر کا، آپ کی خیر خواہی کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی شاہد کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ پہ تا دیر قائم رکھے. ہماری خواہش ہے ایسا نوابشاہ تشریف لائیں، اور یقیناً نوابشاہ والے اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں. اگر ممکن ہو تو کاش نوابشاہ میں چند دن مل جائے. اسلام بھائیوں کی بے شمار خواہشیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج شاہد بھائی کب آئیں گے، اگر آئے تو ہمیں بتانا، ہم سے ملاقات کا سلسلہ بنانا. یعنی کہ ان کو ایک عرصہ ہو گیا، غالباً 20-22 سال نوابشاہ سے ان کو گئے ہو گئے. میرے سر پہ امامہ بھی حاجی شاہد نے باندھا تھا، اور ایسا جب امام باندھتے تو پورے ہفتے اس کو سنبھال کے رکھتا تھا، جمعرات کو میں کھل نہ جائے. پھر جمعرات کو جاتا، پھر وہ میرے سر پہ امام باندھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے خیر خواہ بھی تھے، دوست بھی تھے. الحمدللہ پہلا بیان بھی انہوں نے مجھ سے کروایا اور بیان کی ترغیب انہوں نے مجھ سے دلائی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم دائم فرمائے، آمین. میرا نام عبدالرحمان اتاری، نوابشاہ سیکنڈ بھی 273 بٹ والی گلی کا رہنے والا ہوں. ہمارا اور شاہد بھائی کا گھر بالکل آمنے سامنے. بچپن ان کے ساتھ گزارا، جوانی کچھ ان کے ساتھ گزاری، اور اس اثنا میں ان کو جتنا اچھا میں نے پایا شاید ہی کوئی ہمارے محلے میں ایسا ہو. شروع ہی سے نمازی، تقویٰ پرہیزگاری شروع سے تھی. اگر دین کے معاملے میں کوئی چیز سوچ لیتے تو اس کو پورا کر کے ہی ہٹتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بھوکا مرنا پڑے، ننگے پاؤں چلنا پڑے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جہاں جانا پڑتا جاتے، ہمیں بھی ہدایت کرتے رہتے. تو الحمدللہ میں جب یہ سردار آباد چلے گئے، وہاں بھی ان سے ملنے گیا. تو حاجی صاحب کی ایک سب سے اچھی بات جو کسی بھی شخص میں نے نہیں دیکھی، جب بھی کوئی شہر والا آتا ہے اس سے شہر کے لوگوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں پوچھتے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جب بھی مجھ سے پوچھا، یہی پوچھا کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں جو ہے اس داڑھی رکھی اس نے. میں نہیں حاجی صاحب، ان سے یار کہنا داڑھی رکھیں، نماز پڑھیں. مقصد یہ ہے کہ اور مجھے بھی یہی نہیں پوچھتے کیسی طبیعت ہے، کہ عبدالرحمان بھائی پوچھتے آپ مدنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میں جی حاجی صاحب دعا کریں. کہنا بس مدنی کاموں میں لگے رہیں تو انشاءاللہ استقامت حاصل ہوگی. یعنی کہ جتنی بولی ہے وہ ساری دعوت اسلامی ہی کی بولتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے کام میں پڑ گیا تھا کہ میں فلمیں چلایا کرتا تھا. ہوٹل کھولا میں نے جس میں فلمیں چلایا کرتا تھا. تو یہ بھی حاجی صاحب ہی کے ساتھ رہنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے وہ ہوٹل کا کام جو منی سینما گھر کہلاتا ہے اس سے میری جان چھڑائی. اور پھر حاجی صاحب سے جب بھی ملے انہوں نے مجھے داڑھی کا کہا، مدنی ماحول میں آنے کا کہا. تو اس طرح فیصل آباد بھی گئے تو مجھے یہی کہتے رہے کہ آپ میرے پاس رہو، یہاں رہو، کچھ نہ کچھ آپ بن جاؤ گے، آپ ان برے لوگوں کو چھوڑو. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ان ہی کے کہنے پر ساری چیزیں چھوڑ کر آج الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ فخر ہے ہمیں کہ شاہد بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزارا. آج جو کچھ ہے انہی کی صحبتوں کا نتیجہ ہے، اور اس سے پہلے کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور مدنی مرکز کا تابع دار بنائے. اللہ تعالیٰ شاہد بھائی کے درجات بلند فرمائے، دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. میرا نام محمد نعیم رضا اتاری ہے اور میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں. ہمارے شاہد بھائی ان منفرد شخصیات میں سے ہیں جن کی انفرادی کوشش جو ہے
وہ مثالی ہوا کرتی تھی، اور آج بھی جو ہے دنیا اس کی شاہد ہے کہ جس طرح ہمارے حاجی شاہد کی انفرادی کوشش کے سبب آج دنیا بھر میں دین کے جو ہے خدمت ہو رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ شخصیت کے حامل ہے کہ یعنی غریب سے غریب اور امیر سے امیر جو بھی ان سے ملا الحمدللہ یہ عز و جل آج تک ان کے گن گاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں، آپ کے مرشد کی اطاعت میں، آپ کے عشق مدینہ میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل مرشد کے صدقے آپ کو استقامت کی دولت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ماحول میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت نصیب فرمائے۔ میرا نام غلام زکریا، میں ملنگ مسجد کا مؤذن ہوں۔ شاہد بھائی حاجی صاحب جو ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام کیا ہے، اور ملنگ مسجد میں زیادہ تو رہتے تھے۔ ملنگ مسجد میں مدرسہ، خدرہ مسجد میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، گلزار مسجد میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ تین ٹائم مدرسہ پڑھاتے تھے وہ ماشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو ہے اس کی فل تیاری کراتے تھے، اور ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، ہم لوگ بھی ان سے تعاون کرتے تھے۔ حضرت صاحب جب نواب شاہ میں آئے تو سب سے پہلا اجتماع ملنگ مسجد میں ہوا ہے، اور 10 سال تک ملنگ مسجد فضان مدینہ رہی ہے۔ میرا نام محمد اسلم اتاری ہے، میں ملک کالونی کا رہائشی ہوں۔ الحمدللہ جب ہفتہ وار اجتماع میں ملنگ مسجد میں آتے تھے تو ہم وہاں پر شاہد بھائی کو مکتبۃ المدینہ جو ہے وہ لگائے ہوئے دیکھتے تھے، اور ایک زبردست ماشاءاللہ ان کا یہ تھا کہ بیان کرتے تھے تو بیان اتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگ بیان سنتے چلے جاتے تھے، اور نعت پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے رونے لگ جاتے تھے، اور لوگ ان کی نعتیں سن کر اشک بار ہو جاتے تھے۔ اسی طرح الحمدللہ ہر چیز کے اندر دعوت اسلامی کے ہر مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو محبت دینا، پیار دینا، عام اسلامی بھائیوں سے، دکانداروں سے ملاقات کرنا، ہر ایک سے ملاقات کرنے کا ان کا مدنی ذہن ہوا کرتا تھا۔ ہماری شاہد بھائی کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد اقبال اتاری ہے۔ یہ محلہ اسر پرے کی وہ مسجد ہے، ضیاء مسجد، جس میں حاجی شاہد صاحب نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میں اور حاجی صاحب یہاں اکٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ استادوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ تھا، اور استاد جو ہے بہت زیادہ حاجی صاحب کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور حاجی صاحب بھی استاد کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ استاد صاحب جو ہے نا وہ حاجی صاحب کے رویے سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وقت کے ولی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا حاجی صاحب کی ماشاءاللہ عادت بڑی اچھی تھی۔ یہاں مسجد کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالتے، اور پانی نکالنے کے بعد پوری مسجد کی صفائی کرنا، اور پھر استاد صاحب کے جو گھر کے برتن تھے وہ سارے کے سارے برتن بھی پانی سے بھرا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ جب دعوت اسلامی یہاں آئی، اور دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا۔ پھر حاجی صاحب کو جو ہے، کیونکہ میرے بچپن کے ساتھی تھے، میں نے جب انہیں نیکی کی دعوت پیش کی تو وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے، اور الحمدللہ ہم مل کر ہم نے یہاں پورے علاقے کے اندر نیکی کی دعوت کا کام کیا، اجتماع شروع کیا، چوک درس شروع کیے، اور مسجد کے اندر جو درس تھے اس کا سلسلہ شروع کیا، مدرسہ بالغاں کو شروع کیا۔ ابتدائی طور پر حاجی صاحب جو ہے وہ میرے پاس مدرسہ بالغاں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر میرا کراچی جانا ہوا تو پھر حاجی صاحب نے مکمل طور پر مدرسے کے نظام کو سنبھال لیا، اور مدرسہ بالغاں کو پڑھایا کرتے تھے، اور ان کی ذہنی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے لحاظ سے حاجی شاہد اتاری صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ سارے محلے والے سب لوگ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ جب حاجی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو بہت بڑا منصب عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ حاجی صاحب جو ہے وہ
अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियत है। एक तो बचपन से वो नेक सीरत थे और बचपन से नमाजी थे और बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह जब से दाढ़ी आई है उन्होंने दाढ़ी भी शुरू से ही दाढ़ी रख ली और 5 वक्ता नमाजी बाजमात नमाज अदा करने वाले और नमाज को जो है बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दिया करते थे। कोई भी काम हो कोई भी मसला हो, लेकिन जब भी नमाज का वक्त होता तो अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर वो मस्जिद में चले जाते और बाजमात नमाज को अदा फरमाया करते थे। और हाजी साहब की एक ख़ास आदत ये भी थी कि जब रास्ते में चला करते थे तो रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा होता तो हालांकि उस टाइम हमारा जहन नहीं था ये, ना हमें किसी ने वो तरबियत की थी इन चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब का बचपन से ये जहन था कि रास्ते में कोई पत्थर हो कोई कांटा हो कोई चीज़ पड़ी हो तो वो उठाकर साइड भी कर दिया करते थे। और उस्तादों के साथ वालिदैन के साथ अहले मोहल्ला के साथ उनका बहुत अच्छा रवैया था। अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा मनसब अता फरमाया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने दावत इस्लामी का काम किया है। तो इब्तिदाई तौर पर जब मैंने हाजी साहब को इज्तिमा की दावत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने उस दावत को कबूल किया और हमारे साथ जो है वो इस काफ़िले के अंदर शामिल हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूनुस है। हाजी शाहिद साहब को मैं तकरीबन 20-25 सालों से जानता हूँ और बहुत ही नेक बंदे हैं। पहले मलंग पाड़े में वो नमाज पढ़ाया करते थे और बच्चों को कुरान की तालीम भी देते थे। जब से मैं उनको जानता हूँ 7-8 सालों से और करीबी तरीके से मेरा उनसे वास्ता है, क्योंकि अभी मेरे वालिद साहब का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ। उनके नाम से मैंने मस्जिद बनाने का इरादा किया, जिसमें मेरे दिल में उनकी मोहब्बत आई कि भाई ये इफ्तिताह हाजी शाहिद साहब से करवाया जाए। फिर मैंने हाजी साहब को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ फैसलाबाद से, क्योंकि मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने कुछ टाइम दिया मुझे तो मैंने उनसे मस्जिद का इफ्तिताह भी करवाया। अल्लाह के वो बड़े नेक बंदे हैं, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत दुनियादारी की नहीं है इतनी जितनी वो अल्लाह से लगाव करते हैं। तो उनकी वजह से हमारे दिल में भी उनकी मोहब्बत पैदा हुई है, कुर्बत पैदा हुई है। तो वो नवाब शाह की मोअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और उनका मकसद अच्छे बंदों में जो है उनका नाम आता है और हमारी भी उनसे दिली मोहब्बत है, जिस वजह से हमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले आए तो बोला जी कि ये फैज़ान मदीना को भी देखें आप। तो उनकी मोहब्बत में हमने अब फैज़ान मदीना का भी काफ़ी काम करवा दिया, थोड़ा रहता है वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और मोहब्बत से लोगों के दिलों में जिस तरह उनकी जगह बनी हुई है, इसी मोहब्बत में हम लोगों को भी चाहत आई और हमें भी इस बात की खुशी है कि हमारे नवाब शाह के भी अच्छे लोगों में से शुमार है उनका। तो अल्लाह ताला उनको इसी तरह बरकतें फैलाते रहें और लोगों के दिलों में मोहब्बत अपनी पैदा करते रहें। अच्छा साहब, नवाब शाह बहुत घूम लिया हमने, आइए आते हैं फैसलाबाद की तरफ। लेकिन उससे पहले हुजूर कुछ मुख्तसर से सवाल मैं आपसे करूंगा और इनके जवाबात आपसे लेना चाहूँगा। नाजरीन की दिलचस्पी भी इसमें होगी, यकीनन बहुत से अफराद आपसे वाबस्ता हैं और जानना भी चाहते हैं। हुजूर सबसे पहली बात, खाने में आप क्या पसंद करते हैं? अमीर अहले सुन्नत जो हैं सब्जियाँ फल वगैरह इसकी तरकीब दिलाते, तो अपनी कोशिश भी ये होती कि सब्जियाँ फल। जी हाजी अज़ीज़ साहब फरमाते थे मैं दाल रोटी वाला बंदा। हाँ जी, वो दाल रोटी और जो मिले तो अल्लाह नसीब फरमाए, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादातर फल और सब्जियां खाकर गुजारा किया। सब्जियां और फल खाकर। हुजूर बचपन में स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ाई में कैसे थे आप? आगे बैठते थे पीछे बैठते थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बैठता था। क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में मेरा शुमार होता था। ज़बरदस्त। वो अलग बात है कि शरारतें भी करते हैं बच्चे, तो हम भी वो करते थे। नहीं, 9th में थे हम, 9th C हमारी क्लास थी वो, तो उसमें हमारे जो टीचर थे अमीन साहब, वो एक बार तशरीफ़ लाए
तो बहुत क्लास के अंदर शोर और गुल ऐसा था। तो उन्होंने आके पूछा, पहले तो बच्चे सारे खामोश हुए कि भाई कौन शोर, सबसे ज़्यादा शोर कौन कर रहा था? कल शाहिद कर रहा था। कल अच्छा। तो उन्होंने ऐलान किया कि आज से ये आपकी क्लास के मॉनिटर है। शोर करने वाली कोई बना दें ताकि ठीक हो जाए मामला। अच्छा, इससे भी आपने कुछ सीखा है? सीखने की बात। सही। तीसरा सवाल है सब, ये आपका सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा रहा? स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? इस्लामियात। इस्लामियात, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। और हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि स्कूल के दौर में आप सबसे ज़्यादा शौक से क्या चीज़ खाते थे? कोई ऐसा ख़ास वो याद नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, घर में जो अम्मी पकाती थी हम खाते थे। कोई ऐसा नहीं है कि फरमाइशी प्रोग्राम और ये। और हमारी जो बचपन में और नौजवानी में, बल्कि जवानी में भी बहुत गुर्बत वाले मामलात थे। खाने को मिल जाए अल्लाह का शुक्र है भाई। जैसे पॉकेट मनी और उसका इस्तेमाल, अब ये तो उस वक्त वो 4 आने मिलते थे मेरे ख्याल में 5वीं क्लास में। 4 आने या 6 पैसे कितने ऐसे होते थे। और तो वही वो रेडियो से गोलगप्पे तो फालूदा तो ये चीज़ें लेते थे। यानी बचपन में बचपने वाली ही आदत आपकी रही। मतलब चल के नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम लोगों से देखते हैं वाकई के जी बच्चा बड़ों वाली बातें कर रहा है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। यकीन कीजिए, बच्चा बच्चा ही रहे, बड़ा बड़ा ही रहे। अगर उसने बचपन में ही बड़ों वाली बातें शुरू कर दी तो फिर वो बचपने का मज़ा तो ना रहा। आइए चलते हैं जनाब नवाब शाह से फैसलाबाद की तरफ। हुजूर, अगर आपकी ज़िंदगी के 2 बुनियादी अदवार देखे जाएँ तो यही बनते हैं, प्री फैसलाबाद और पोस्ट फैसलाबाद, यानी हिजरत से पहले और हिजरत के बाद। क्या ऐसा हुआ, अगर मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचूं या कोई और इंसान देखे, दुनिया के हालात को देखें, हिजरत एक मुश्किल चीज़ होती है। इंसान अपने घर को, आबाई हालात को, सब कुछ देखा दिखाया और एकदम से उसको छोड़ के कहीं जाना है। तो क्या ऐसा मामला हुआ कि उस जगह जहाँ आपकी पैदाइश हुई, तमाम रिश्तेदार वगैरह भी थे, आप वहाँ से फैसलाबाद आ गए? व्हाट वाज द मेन थीम बिहाइंड दैट? यहाँ पर फैसलाबाद में एक सैयद साहब MBBS कर रहे थे। उनकी तरगीब पर इस्लामी भाइयों ने लेटर लिखा। उस वक्त वर्ल्ड निगरान थे सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, रहमतुल्लाह अलैह, अब इंतकाल हो गया उनका। तो उन्होंने वो लेटर जो है हमारे बड़े भाई यासिर भाई को भेजा। तो यासिर भाई ने मुझे पढ़ाया कि यहाँ के इस्लाम में चाहते हैं कि मैं फैसलाबाद आ जाऊँ। यासिर भाई माशाल्लाह उन दिनों पंजाब भर में जाते थे, बयानात, नात खानियाँ वगैरह, तो इस्लाम में इनको जानते थे। अम्मी को मैंने अर्ज़ कर दिया कि यूँ मदनी मरकज़ से हुक्म हुआ है तो मैंने फैसलाबाद जाना है। तो अम्मी औलाद की मोहब्बत में वो मान नहीं रही थी। फिर यासिर भाई को, बड़े भाई को बीच में डाला कि अम्मी को राज़ी करो, मैंने तो जाना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी राज़ी हुई और यूँ फिर फैसलाबाद आना हुआ। अमीर अहले सुन्नत के पास हाज़िरी होती थी, बड़े भाईजान हाजी यासिर की उंगली पकड़ के चले जाते थे। अमीर अहले सुन्नत उन दिनों रफ़ीकुल हरमैन तहरीर कर रहे थे अब्दुल हबीब भाई के घर पर क्लिफ्टन में। तो वहाँ मुलाकात हुई और मुलाकात दुआएं लेकर हम यहाँ पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, जब आप फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, यहाँ उस वक्त आपकी कितनी प्रॉपर्टी मौजूद थी, क्या ज़रिया था, किसने आपको रिसीव किया, कुछ इस बारे में फरमाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो। एक इंसान किसी जगह से दूसरी जगह पर तालीमी इदारे में जाता है तालीम हासिल करने के लिए, हॉस्टल का कमरा पहले ही बुक होता है, मैस तैयार होती है, कोई फिक्र नहीं होती, उसी इदारे के अंदर धोबी भी है, सब कुछ है। यहाँ पर आपका ऐसा क्या था ताकि कुछ अंदाज़ा हो सके किस तरीके से फैसलाबाद के अवाइल के दिन जो थे वो हमारे रहे? बज़रिए ट्रेन में हाजिर हुआ था और स्टेशन पर नवाबशाह में वो 85 इस्लामी भाई होंगे, कसीर एक तादाद थी जो छोड़ने के लिए आए थे, और कसीर तादाद थी यहाँ 2 थे। फैसलाबाद स्टेशन पर 2 थे जी। एक कोई बड़ी उम्र के थे साहब, और एक हमारे हाजी हसन साहब बहुत ही खैर ख़्वाह हैं दावत इस्लामी के और बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके बेटे तैयब भाई, रजब का महीना था ये, तो यहाँ उनके साथ बैठकर फिर यहाँ हाज़िरी हुई। जो पहली रात मेरी फैसलाबाद में गुजरी ना, उस रात ज़लज़ला आया था और ये 1 फरवरी थी, ये मुझे याद है। हजवेरी मस्जिद यहाँ फैसलाबाद में दावत इस्लामी का अव्वलीन मरकज़ रही। मुफ्ती एहसानुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द थे उनकी मस्जिद में, और उनके बेटे कारी नूरुल हक रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हो गया। उन्होंने भी दावत इस्लामी का बहुत काम किया। तो सर्दी की रात थी, लिहाफ वगैरह उन्होंने ला के दिया, खैर खाई की। तो यूँ यहाँ पर हाज़िरी हुई। अव्वलन सर्दी बहुत लगती थी क्योंकि नवाबशाह में इतनी सर्दी नहीं होती,
बहुत सर्दी लगती थी भाई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आदमी आदी हो जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैसलाबाद आते ही बच्चों का मदरसतुल मदीना पढ़ाने की सादत हासिल हुई। माशाअल्लाह। कुछ अर्सा वो रहा और मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर बयानात की सूरत होती थी। फिर मदरसतुल मदीना बालिगान का मेरा बड़ा शौक़ था है, तो मैं इस्लामी भाइयों को मदरसतुल मदीना बालिगान भी पढ़ाता था, बल्कि मैं सिलेबस लेकर आया था नवाबशाह से। मेरा अज़्म था कि मैंने मदरसतुल मदीना बालिगान को बहुत फ़रोग़ दूँगा, जिस कदर कर सका अल्लाह कबूल करे। अब तो माशाल्लाह बाकायदा हमारे वो शोबे और उन्होंने संभाल लिया अल्लाह की रहमत से। मदनी के नाज़रीन, यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर किबलाई साहब का जो अव्वलीन एक दौर गुजरा, उसमें आपने नाम लिया जनाब हसन परवाना साहब का। आई साहब की ज़िंदगी में और फैसलाबाद की दावत इस्लामी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक रोल है। आइए इनके भी तासुरात देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन परवाना तारी फैसलाबाद सरदाराबाद से। शाहद भाई के मतलब हमें ये मालूम हुआ भी नवाब शाह में ना ये स्टॉल पर बैठते जो मकतबे के स्टॉल पर ना, तो हमें कहीं से मालूम हुआ ये इनके ना दीन के काम करने का इनमें बहुत जज्बा है, तो आप इनको इधर सरदाराबाद फैसलाबाद में बुला लें। तो जब ये आए तो मेरा बेटा तैयब हसन वो इनको उधर स्टेशन पर लेने के लिए गया। तो उस वक्त तो बहुत ही चंद लोग से 3-4 बंदे जो यहाँ पर इमामत शरीफ पहनते थे। मैंने कहा अभी जो भी आपको इमामत शरीफ वाला नज़र आए ना, तो स्टेशन पर उसको पूछ लेना भी मैं भाई साहब का बेटा हूँ, तो आप शाहद भाई हैं तो आप मेरे साथ चलें। तो उन्होंने बताया, तो इस तरह वो मेरी पहले दुकान पर आ गए। दुकान पर आ गए तो हमने अपने घर के करीब, उन दिनों मकतबातुल मदीना या मदरसातुल मदीना नहीं होता था, हमने अपने घर के करीब ना अपनी मदरसा बनाया हुआ था। कोई घर किराए पर लेकर तो उधर अपने मदरसा बनाया हुआ था। वहाँ पर 1-2 कमरे इस्तेमाल होते थे, बाकी खाली रहते थे। जिस वक्ती था सुबह को शुरू होता था और असर के वक्त ख़त्म हो जाता। वो 2-3 कमरे खाली थे। अब तो हमने इनको कहा भी आप इधर आराम भी करें, अपना काम भी करें। तो इन दिनों अजमेरी मस्जिद में इज्तिमा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जिस तरह काम किया है माशाल्लाह, बहुत मेहनत बहुत कोशिश से। लेकिन वो जो उस वक्त निगरान थे वो उलमा कराम में से थे, मस्जिद के इमाम थे, ख़तीब थे, जहाँ पर हमारा इज्तिमा होता था। उन्होंने महसूस कर लिया भी ये ना इसमें कोई क्वालिटी है, शाहद भाई में ना कोई क्वालिटी है, इनको हमने निगरान बना दिया। तो उन दिनों में कोई इतना बड़ा हमारा कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जो दीन का काम करते हैं मुकम्मल तौर पर उनके लिए कोई असबाब हो ऐसे अखराजात के। और अल्लाह ताला की रहमत से इन्होंने अपना बहुत कोशिश मेहनत से किसी से कुछ मुतालबा या कोई मामला नहीं किए। इनको बात में फाके भी आए हैं, मगर इन्होंने ना अल्लाह की रहमत से ना कभी किसी से गिला किया है, ना कभी किसी से कुछ मांगा, ना कभी किसी से ऐसा मामला कह कि सिर्फ जो मरकज़ का हुक्म होता था उसी तरह काम करते थे। मरकज़ के हुक्म पर आंखें बंद, बस ऐसी मेहनत से दिन रात एक करके काम किया। मोटरसाइकिल पर सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, रात दिन बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ना इन्होंने काम किया। और ये उस वक्त जब आए थे कहते मैं ये नियत करके आया हूँ जितनी देर तक मरकज़ कहेगा मैं उतनी देर तक यहाँ रहूँगा। इनके ये ज़हन से दीन की इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा खिदमत, इनके ये तासरात थे कि मैं ज़िंदगी में 4 बंदों का काम कर जाऊँ जितना भी मुझे मौका मिले। तो उसके बाद हमने कुछ अरसे बाद वो वहाँ रहे। उसके बाद मरकज़ हमने बना लिया ये फैज़ान मदीना टाउन सुसा रोड पर। वहाँ पर भी अब आरजी वो ढारा सा था, एक कमरा था, वहाँ पर रात दिन रहते थे, काम और बस काम। जब दिन को सोना होता था तो उस वक्त कोई दफ्तर में कोई आ गया, कोई चला गया, तो बहुत बड़ी आजमाइश में उन्होंने वक्त गुजारा है। इसके बाद माशाल्लाह आस्ते आस्ते अल्लाह ताला ने इनको ये फनाफी शेख के मकाम पर ये पहुँच गए। जो भी मरकज़ से आर्डर आता है, हुक्म आता है, तो उसको ना समझ में आता है, नहीं आता। बाज़ का लोगों ने कहना भी ये यार हमारी समझ में, इन्होंने कहा नहीं, बस जो मरकज़ का हुक्म है ना हरफ़े आखिर, बस मैंने इस पर ही काम करना। तो अल्लाह ताला ने आज इनको इतनी इज़्ज़त और इतनी बरकत दी है, पूरी दुनिया में इनका माशाल्लाह इज़्ज़त और बरकत अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, मेरी मुलाकात होती रहती है तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा, तो मशवरा भी फैज़ान मदीना के मतलब और भी कोई जो भी हमारे मामलात होते हैं, बात का घरेलू मामलात भी मेरे से ही ना, इनके बच्चे मुझे दादा अबू ही कहते हैं, ये भी मुझे माशाल्लाह ऐसे ही कहते हैं, आप हमारे वाला साहब की जगह है, तो बच्चों से भी माशाल्लाह बड़ा ताल्लुक़ है मेरा। और तकरीबन एक हफ्ते में एक मशवरा तो होता ही है। मंगल के दिन आमतौर पर हमारा मशवरा होता है, अगर ये इधर हो, आमतौर पर इधर ही होते हैं, कभी कराची जाते हैं तो फिर हम इनके जो दूसरे हैं कुलीग, उनके साथ मशवरा हो जाता है। भाई साहब, हसन परवाना साहब के बारे में ये पता चला मुझे कि आप इनको वालिद साहब कह के पुकारते हैं और आपके बच्चे इनको दादा कह के पुकारते हैं। इनकी शफ़क़तें इसी तरह की हैं। मैं वालिद साहब कहता नहीं हूँ, लेकिन अदब इसी तरह करता हूँ। अदब इसी तरह करते हैं। यहाँ पे सब एक चीज़ और भी है कि आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा, कब इनका इंतकाल हुआ और उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आप होश में थे, यानी पता था आपको, लड़कपन था? वालिद साहब का इंतकाल ग़ालिबन 83-84 की बात होगी जब इंतकाल हुआ, 83-84 या 85 की। वालिद साहब को समझें कि वो राह में चलते चलते हार्ट अटैक हुआ था और वहीं वो रुमाल रखते थे, तो रुमाल बिछा कर लेट गए थे नवाबशाह में। और बस वो लोगों ने फिर वो मैयत को, दरवाज़ा तो लॉक लगा हुआ था, इत्तेफाक से घर में कोई भी नहीं था, तोड़ कर वो रखा था। वालिदा का इंतकाल उसके बाद हुआ। और वालिद साहब की मौत पर वो जो कहते हैं कि पाँव तले ज़मीन निकलना, वो महसूस हुआ उसको, वो क्या चीज़ होती है। अल्लाह अकबर। और वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, मुझे जनाज़ा पढ़ाने की सआदत हासिल हुई। मैं इस पर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि गालिब अक्सरियत ऐसे हैं कि वो माँ बाप का जनाज़ा पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ना ही नहीं आता। हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से सआदत मिली, और तदफीन और कब्र पर वो जो बहुत रिक़्क़त अंगेज़ नात ख़ानी, और वो वाकई समझें कि आपने कहा तो वो याद आ गया। लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर, वो कलाम वो पढ़ा जा रहा था और बहुत पुरसोस था। वालिद साहब हमारे बहुत मुशक्क़त करने वाले थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। वालिदा जो है माँ ही होती है, वो शफ़क़त के लिहाज से माँ ज़्यादा होती है आगे, क्योंकि अल्लाह की शान है, उसने तकलीफ़ें उसने ज़्यादा उठाई होती हैं बाप के मुकाबले में। तो अम्मी की बड़ी मोहब्बत थी, और अल्लाह का करम है, मैं अम्मी के साथ मसाले कूटता था, आटा भी गूंद लेता था, पोछा भी लगा लेता था। अम्मी हमारी शुगर की मरीज़ थी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उनकी पिंडलियों पर वो मैं इस तरह तो उनको सुकून मिलता था। और भाइयों में सबसे आखिर में शादी मेरी हुई थी, हम 5 भाई, तो मैं अम्मी के साथ, सारे अपने अपने फैमिली के साथ, मैं अम्मी के साथ। ऐसा आपकी वालिदा को क्या क्या पुकारती थी? शद्दी शाहिद से। अच्छा, सब यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में आई, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बाद में वालिदा का इंतकाल हुआ। आमतौर पर ये बात कही जाती है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, अगर मर्द चला जाए, शौहर चला जाए, तो औरत की हिम्मत टूट जाती है, और वहाँ पर उसके पास देखा जाए अगर तो बेटे बच्चे बेटियाँ ही होती हैं। हालांकि बेटे शौहर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो होते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी भी ज़िंदगी का एक तजर्बा रहा, और आप हमें क्या सिखाएंगे कि अगर वालिद साहब चले जाए, मेरे भी वालिद साहब इंतकाल फरमा चुके हैं और वालिदा हयात, आप ये हमें इरशाद फरमाएं कि ऐसी हालत में जब हम देख रहे हैं कि शौहर नहीं रहा, बाप नहीं है, तो माँ के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? अब देखें कि वो माँ रह जाए या बाप रह जाए, तो वो किस कदर तन्हाई फील करते होंगे। तो उसको हमें वैसे भी आम हालात में भी माँ बाप को वक्त देना चाहिए। जब ऐसे हालात आ गए, अब ज़्यादा वक्त देना चाहिए और बार बार पूछना चाहिए। इससे पहले कि माँ अपनी ज़रूरत कहे, बाप अपनी ज़रूरत कहे, पहले क्यों नहीं पूछ लेते? बेपूछे क्यों नहीं उनकी खिदमत हम करते? अल्लाह पाक नसीब फरमाए। जब ऐसा सिलसिला हो, फिर तो बहुत ज़्यादा अपनाइयत और वो देनी चाहिए उनको। मुझे अभी से कहा जा रहा है कि जब वालिदा मोहतरमा मरहुमा आती थी तो आप उनको जाने नहीं देते थे, 1 घंटा ठहर जाएं, 2 घंटा ठहर जाएं, यूँ अर्ज़ किया करते थे। इसमें क्या हिकमत और क्या चीज़ पोशीदा थी? कोई इस तरह की बात याद तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर के वालिदा से मुझे मोहब्बत थी और है। और इस सब का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, मुझे चाहे कि आपको याद होगा, वालिदा की तरफ से कि तरके में जब सब कुछ तकसीम हो तो मुझे क्या मिले। आइए मुख्तसरन आई साहब से वो भी सुन लेते हैं। आई साहब, आपने क्या तरके में अपनी वालिदा का लिया, वालिद साहब से लिया? अल्लाह अकबर। वालिदा के इंतकाल के बाद दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिल चुका, ना खूबी थी ना है, आइंदा भी अल्लाह करम फरमा दे।
अमीर सुन्नत की तरबियत और मुझ जैसों को कितनों को संभाले हुई है। तो जो बाद में तकसीम हुआ सिलसिला, तो इसमें शरन यह है कि वो जबरन वो लेना ही होता है। तो लेने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दोनों बहनों को पेश कर दिया जो कुछ था। यानी जो मर्द आपको हिस्सा मिला बतौर बेटे, आपने अपनी सिस्टर्स को वो दे दिया। मैंने अपनी दोनों बहनों को, बड़ी बहन, दोनों बहनें हमारी बड़ी हैं और दोनों हयात में ही, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, और एक नवाबशाह में, एक कराची में। तो मैंने वो उनको पेश किया और फिर ये इल्तिजा की कि अम्मी के जो चप्पल हैं वो मुझे दे दें। ये भी एक मोहब्बत की बात है, लेकिन औलाद को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखे। और जैसे ईद का मौका है तो कब्रिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाला आने वाले को पहचानता है और उसी तरह उसको उनसियत महसूस होती है जैसे ज़िंदगी में महसूस होती थी। हम वहाँ बैठे, वो अलग बात है कि जैसे हमारे वालिदैन के कब्रों के साथ इतनी कब्रें बन गई हैं कि वहाँ जाना मुमकिन नहीं रहा। अब काम मुस्तहब है, हराम काम करके किसी मुसलमान की कब्र पे पाँव रख कर जाने की इजाज़त तो नहीं मिलेगी ना, तो फिर दूर से ही फातिहा ख़ानी हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शरई काम करने जा रहे हैं तो सारी बात है, शरीयत को वायलेट करके जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, फैसलाबाद की तरफ वापस आते, लेकिन फिर थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन भाई साहब से करते चले जाते हैं। भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से ही आपके साथ मेरी एक वाबस्तगी है और आपके साथ सफ़र भी रहा, हर जगह रहा। तो जब भी हमारी गैदरिंग होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आपसे नाज शरीफ की फरमाइश करते हैं, कुरान पाक की कोई तिलावत आप कर दें, इस चीज़ के हवाले से होता। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, पूरा का पूरा कुरान ही पढ़ा जाए तो उसमें एक लुत्फ़ और सरूर है, और आपकी तिलावत माशाअल्लाह खुशलहान कारी हैं आप। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सी आयत या कौन सी सूरत है जिसको जब आप पढ़ते हैं तो आप पर अलग कैफियत तारी होती है और आपकी ख्वाहिश होती है कि आप वो हिस्सा पढ़ें? अब अल्लाह करे ऐसी कैफियत हो जाए, ऐसा हो। कुरान से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले हाफिज़ बन जाऊँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वाकई कारी बन जाऊँ। और जैसे नात ख़ानी होती है तो बड़े पुरसोज वो मनाजिर होते हैं, बाज़ नात ख़ाने से पढ़ते हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं तिलावत भी ऐसे करूँ, काश मैं कारी बन जाऊँ। मैं कारी हूँ नहीं, लेकिन कोई कारी कहता मुझे खुशी होती। माशाअल्लाह। ऐसा अगर कुछ आप तिलावत भी फरमा दे 2-3 आयात की, हमारे नाजरीन की भी ख्वाहिश होगी और ऐसे भी कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजाअत सकरातुल मौत वजाअत सकरातुल मौत बिलहक़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा पेश करना चाहूँगा, बड़ी इबरत है। और मौत की सख्ती हक़ के साथ आ गई, ये वो है जिससे तू भागता था, और सूर में फूंक मारी जाएगी, ये अज़ाब की वईद का दिन है। और हर जान यूँ हाजिर होगी कि उसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाह होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए, और मौत, सकरात, कब्र, हश्र, इसकी याद हमें हर वक्त रहे। बिलखुसूस खुशियों में हम आखिरत को भूल जाते हैं, अपने रब को भूल जाते हैं, अपने नबी को भूल जाते हैं, और वो काम करते हैं जिसमें अल्लाह रसूल की नाराज़गी। गौर तो करें, खुशी अल्लाह रसूल की तरफ से आई और हम खुशी में अल्लाह रसूल को नाराज़ कर रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा नमक हराम कौन है फिर? अल्लाह हमें नमक हलाली नसीब फरमाए। अल्लाह खैर फरमाए जी। सेकंड क्वेश्चन आयशा की तरफ बढ़ाते हैं। साहब, आप नात, पहले तो ये बताएं साहब, नात लिखते भी हैं? नात
नहीं मनकबतें लिखने की कोशिश की है। मुझे याद है जब हम गाड़ी में होते थे आप उसको भी मनकबत लिख रहे होते थे। मेरे लिए सुन्नत की मनाकिब का एक आगाज़ का सिलसिला था और माशा अल्लाह वो काम हुआ। हाजी साहब, ये जो नात शरीफ आप पढ़ते हैं, वो नात शरीफ जो आपको पसंद हो, आपकी फेवरेट, उसके कुछ अशार सुना दीजिए। नातें तो नातें ही सारी पसंदीदा ही हैं, बस वो अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में दाखिला होगा और अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में सारे नबियों की मौजूदगी में अपने नबी की नात पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, ये तमन्ना है कि यूँ इशारा करके हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी यूँ इंशाअल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी। माशा अल्लाह। ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेरे मुर्शिद मुझसे राज़ी हो जाए, मेरे आका मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि इनकी रज़ा में मुझे मेरे रब की रज़ा मिलेगी। गोल यही मकसद है। बड़ी मेहनत के साथ आपने दीन का काम किया, दावत इस्लामी का सहारा आप बने रहे और आपने खूब मेहनत की। शहर में रहकर भी अमीर सुन्नत के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद जब यहाँ शिफ्ट हुए तो अगले दिन ही हमने वो फजर में जगाने वाला सिलसिला अमीर सुन्नत के फैज़ान से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। शरई अहकाम की पाबंदी के लिहाज से देखा जाए तो कई मामलात ऐसे हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पाबंद, इनको मैंने देखा है नमाज़ों के हवाले से, तिलावत कुरान के हवाले से। ये अंदाज़ देखा कि कोई एक मिनट के लिए भी आपके पास आता तो कुछ न कुछ उसे नेकी की दावत ज़रूर देते हैं, भले वो मुसाफहा ही करने आया। उस वक्त भी ये अंदाज़ देखा, अब भी ये अंदाज़ देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पंचतन पाक के सदक़े में मुझे 5 बेटे अता फरमाए। 5 बेटे, हम 5 भाई, मेरे 5 बेटे, मेरे बेटों के मामू 5। माशाअल्लाह, पंचतन पाक का फैज़ान जारी हो सारी। जब फैसलाबाद जा रहे थे तो ये मंजर था जैसे आप पहले हाजियों को छोड़ने जाते थे लोग, स्टेशन पे जो भी थे जारो कतार लोग उधर रो रहे थे। तो हाजी शाहिद जब जाने से पहले मैंने बोला शाहिद भाई आप जा रहे हो? बोले यार बस मुर्शिद का हुक्म। कोई ऐसी नसीहत जो आप आखिर में करना चाहें? कुरानी नसीहत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम फरमाओ मेरी नमाज,
मेरी कुर्बानी सारी इबादत जीना मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करे मेरा भी हो जाए, आपका भी हो जाए, नाज़रीन और नाज़िरात का भी हो जाए। दावते इस्लामी तेरे लिए, दावते इस्लामी